सत्यमयी परमे। ॐ आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। सत्यमयी परमे। माँ, He is the maker and the world He made. He is the vision and He is the seer. He is Himself the author and the art. He is Himself the knower and the known. He is Himself the dreamer and the dream. Savitri. Srimad Sri Aurobindo. To Thee, who has been the material envelope of our Master, to Thee, our infinite gratitude. Before Thee, who has done so much for us, who has worked, struggled, suffered, hoped, endured so much. Before Thee, who has toiled all, attempted all, prepared, achieved all for us. Before Thee, we bow down and implore that we may never forget, even for a moment, all we owe to Thee, the Mother. ତୁମେ ଯେ କି ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୌତିକ ଆବରଣ ଥିଲ, ତୁମ ନିକଟରେ ଆମେ ଆମର ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଯେ କି ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କିଛି ସାଧନ କରିଛ, ଏତେ କିଛି କର୍ମ କରିଛ, ସଂଗ୍ରାମ କରିଛ, ଦୁଃଖ ଆଶା କରିଛ, ଏତେ କିଛି ସହ୍ୟ କରିଛ। ତୁମେ ଯେ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛ, ସବୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛ, ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ ଓ ସମ୍ପାଦନ କରିଛ। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ମଥାନତ କରି ବିନୀତି ଭରା କଣ୍ଠରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ, ତୁମ ନିକଟରେ ସବୁ କିଛି ଲାଗି ଆମେମାନେ କେତେ ଋଣୀ। ଶ୍ରୀମା Sri Aurobindo came on earth from the Supreme to announce the manifestation of a new race and the new world, the supermental, supramental. Let us prepare for it in all sincerity and eagerness. The Mother, ଏକ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ଏବଂ ନୂତନ ଜଗତ ଅତିମାନସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ସକଳ ଆନ୍ତରିକତା ଓ ବ୍ୟଗ୍ରତାର ସହିତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଶ୍ରୀମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏହି ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ସନଲିଟ୍ ପାଥ ଆଇଟିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃ ଅଭିପ୍ସୁ ଦିବ୍ୟାତ୍ମମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶରୁ ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ପ୍ରଣାମ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ବିନମ୍ରତାର କୃତଜ୍ଞତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆଜିର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେୟାରଟି ନିବେଦନ ପାଇଁ ହର୍ଷିତା ଅପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। Prayer is the best weapon to win your unseen battles. ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା। ହର୍ଷିତା ଅପା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେୟାର ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ମା
तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम ही हो नैया, तुम ही जीवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के धूल हम है, जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के धूल हम है, दया दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही ना। सुंदर प्रार्थना निवेदन कले आपा बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान समय हो जाइछि आमर से आलोचना विषय को आसवा। आज आलोचनार विषय रही द मदर बुक ए मास्टरपीस ऑफ द मास्टर। द मदर बुक मास्टरपीस ऑफ द मास्टर। यह उपस्थापना करिवे आम समस्त प्रिय सम्माननीय श्रीजुक्त सुभाष चंद्र पट्टनायक भाई को समस्त तरफ प्रणाम। आलोचना को स्वागत करुछि। आपण आपणकर वक्तव्य माँ प्रभु चरण अर्पण करंतु। भाई प्रणाम। हेलो, हाँ मु समस्त सुनी पारुछन्ति कि मते? हेलो आज्ञा भाई सुना जाउछन्ति। सुना जाउछि? आज्ञा आज्ञा भाई। हे भगवान, तुमर इच्छा पूर्ण हेउ, तुम कर्म संसिद्ध हेउ। आम भक्ति को दृढ़ कर, समर्पण को वर्धित कर, पथ ज्योतिर्मय कर। अंतर आंभे माने तोते परम अधीश्वर रूपे प्रतिष्ठा करुचु। तू जेपरी समग्र पृथ्वीर परम अधीश्वर होई पारु, एबे भी अज्ञानाच्छन्न ताहाकु आलोकित कर। आंभ मानकर अभिप्सा एबे भी मलिन, ताहाकु शुद्ध कर। आंभ मानकर कर्म एबे भी असमर्थ, ताहाकु सामर्थ्य युक्त कर। हे भगवान, ए पृथ्वी आर्त शोकग्रस्त विशृंखला यहाकु बासगृह करिछि। अंधकार एते घनीभूत जे एकमात्र तू ही ताकु दूर करि पारु। आस प्रकाश हुओ, कर्म तोर संसिद्ध हेउ। मांक श्री अरविंदंकर जय। आजर ए कार्यक्रम रे जोग देबाकू मते निमंत्रण करथिबारु ओ समस्त अपा भाई मानकू मोर हार्दिक नमस्कार जनाऊँछि। एवं तत्सहित परम प्रभु श्री अरविंद और श्री मांकर चरण कमल रे मोर भक्तिपूर्त कृतज्ञतापूर्ण प्रणाम जनाई कार्यक्रम आरंभ करने को जाउछि। आपण माने सुनिले आज जो विषय वस्तु दि जाइछि
the mother, the masterpiece of our master. आपण माने सबु दी मदर बहिर गला मासे धरी जो आलोचना चक्र सब एथिरे आलोचना हला आपण समस्त ताको सुनिचंती प्रतिदिन जने वक्ता प्राय 30 जन वक्ता आको सब गोटे गोटे सब्जेक्ट नहीं करी माँ भई संपर्क रे आलोचना करिसंती एवं काली से सरिला आज से सब को मिसई करी मते कहया को एटा कोहा जाई किंतु एते कम समय भितर विषय वस्तुटी एते विराट जया को यथार्थ भाव रे परिप्रकाश करिवा एते कम विषय समय भितर केते दूर संभव होबो मु सेतिरे संदेहान जा हौ संक्षिप्त रे ताकू मु आरंभ करबा को जाउछि विषयटी जो रही दिया जाइछि से विषयटी को आपण माने तार ओडियाटा जानी पारिथिबे जे माँ बहिटी आमर प्रभु श्री अरविंदर सर्वोत्कृष्ट रचित ग्रंथ या को प्रमाण करिया को हेले बहु जिनस ऊपर को दृष्टिपात करिया को हेबो मु एटा को अन्य भाव रे आपण मानक आगे प्रकाश करूची श्रीमा श्री अरविंदर पूर्णांग जोग धारार महिमोज्वल संक्षिप्त सार संग्रह है महापुस्तक श्री अरविंदर पूर्ण जोगर जो धारा तार संक्षिप्त सार संग्रह है महापुस्तक ए विषय कहया को गला बेले यार संपर्कित किछि पूर्वाभास मु आपण मानक आगे उपस्थापन करने को जाऊँगी कारण तार बहुत आवश्यकता अच्छी ये कथाटे होची जे प्रभु आउ माँ ए जो कार्य रे युक्त हेले यार पश्चात रे जो रहस्य रही से रहस्य सब आमको उद्घाटन करने को हम ता नहेले ये सठिक भाव रे बुझा जाई पारिबो नाही आपण मानकु एठी गोटे क्षुद्र पुस्तिका 15 टू 18 पृष्ठार गोटे क्षुद्र पुस्तिका विषय रे सूचना देवा को जाउची एवं समस्त को अनुरोध करी जदि के पढ़ी ना समस्ते पढ़िबे कारण श्री अरविंद को तांको साधना विषय जानिबा पई तांको मुख निसृत वाणी एथिरे वर्णित होइछि एटार ना होछि उत्तरपड़ा अभिभाषण एटा को अनेक पूरा पुराना लोक पढ़िथिबे किंतु आजिकाली को युवा वर्ग हुए तो ए बहीटी को पढ़ी नथिबे जदि भी पढ़िथिबे ताकू मन पुरे देखि नथिबे एक छोट क्षुद्र बहीटी समस्त माँ श्री अरविंद को युक्त होइथिबा कार्य रे जोग देथिबा समस्त व्यक्ति विशेष को मु विशेष अनुरोध करी ये बहीटी को आपण माने पढ़ले माँ श्री अरविंदर कार्यधारार आरंभ आपण भल भाव जानी पारिबे मु तार किसी सूचना एठे देवा पे चाहूची तापरे आमे विषय वस्तु ऊपर को जीवा परम प्रभु ताका निज भाषा रे एते गुडे कथा कहिचंदी तांकर साधना विषय रे सेही कथाटी से उत्तरपड़ा अभिभाषण रे वर्णना करछन जेतेबेले से वर्षे पर
जेल रही सारा पर जेल रू बाहर प्रथमे से उत्तरपड़ा निमंत्रण करते से समय प्राय 10,000 लोक से सभार युक्त होते जोग देते एवं सेठी अति गुरुत्वपूर्ण विषय सब से कही तेणु तुंडर यही बाणी आपण मान सामने मु रखा जाऊँगी प्राथमिक अवस्था से निजे कहते कि पूर्वे मो मनरे बहुत संशय थिला एबाउट हिंदू धर्म उपरे मु लंडन रे विदेशी कथा मु पढ़ी कहूँ आपन को सी जहाँ कही मो कथा नुहे मु इंग्लैंड रे विदेशी वातावरण विदेशी भावधारा मध्य प्रतिपालित होती एक समय मोर मन होता जे हिंदू धर्म अनेक विषय केवल काल्पनिक मु भावुली ताहा मध्य एपरी अनेक जिनिस अच्छी जहाँ केवल स्वप्न अनेक वस्तु अच्छी जहाँ केवल विभ्रम और माया ये मनोभावटी को प्रथमे से प्रकाश कर कहते सेतेबेले मो समय अज्ञेयवादी संशयवादी और नास्तिकवादी भाव थिला एवं भगवान जे अच्छी मुझे संदिहान थी मु सानिध्य अनुभव करू तथापि मते कही जणे वेदर सत्य गीतार सत्य और हिंदू धर्म सत्य प्रति टाणुली मु जानी पारि नथिली किंतु जणे किए मते टाणुली तेबे सी संपर्क आसिले केमती सी जो कहले मु नास्तिक हिंदू धर्म उपर मोर संदेह अच्छी तापर तांको भितर गोटे प्रश्न उठिला जोग बल तो बहुत लोग बहुत कथा कहते तेणु ताकू जाना हेले प्रमाण करा मत जोग करने हम तेणु से जोग करने गुरु जने दरकार से बेले विष्णु प्रसाद लेले नामक जड़े योगी गुरु तांका सम्मुख उपस्थित हेले से कहले जे मत टिके आपण योग आ प्राणायाम करने विषय शिखे दियंतु से योग गुरु तांको कहले केमती प्राणायाम करने हम ध्यान करने हम एवं से प्राय किसी समय से विषय अभ्यास करी जहा फल पाइले गुरु आगे प्रकाश कले जो अनुभूति पाइले गुरु आगे प्रकाश कले गुरु तांकर अनुभूति शुणी आश्चर्य हो गले से कहले एणिकी तुमर आउ केही पथ प्रदर्शक बा गुरु हो पारे ना मु तो नहीं आउ कहीं भी हो पारे नहीं कौन से शरीरधारी गुरु तुमर आवश्यकता नहीं तुमर अंतर भितर बहु किसी किसी तपस्या सब कले एवं किसी किसी सिद्धि भी कले एवं तापर तांकर जो जेल हैला से जेल रु जते से मुक्त हेले तांको जेल भितर जो सब अनुभूति होता से सब प्रकाश कर कथाटा भी मुझे कहवाक जो जाऊँगी यही कथाटी भी प्रभु श्री अरविंद भाषण में कही कौन सेटा जेतेबेले मते गिरफ करी लाल बजार हाजत को अति शीघ्र निया जाइथिला सेतेबेले किछि क्षण पाई मोर विश्वास टळी पड़िथिला कारण मु भगवान को उद्देश्य रे भीतरटा को देखि पार नथिली तेणु मु क्षणक पाई विचलित होई तांको अंतर रे कांदी कांदी कहिली अंतर अंतर भगवान को से कहली एपरी कौन हला मु विश्वास करिथिली देशवासी पई कार्य करबा मोर लक्ष्य थिला एवं से कार्य संपूर्ण होगा पर्यंत तुम्हें मते रक्षा करिवो ताले मु एठारे कहीं मो विरुद्ध रे उपरि अभियोग कहीं
दिने दुई दिन बीतीजा तृतीय दिन मु अंतर प्रदेश एक बाणी शुणा पाइली धैर्य धर और देख वेट एंड सी धैर्य धर और देख मु शांत हो अपेक्षा करने लगी तापर मत लाल बजार रु आलीपुर को नहीं गले एवं सेठारे मत एक मास अन्य मान ठारू दूर रे गोटे निर्जन कक्षरे रखिली मु सेठारे दिवारात्रि अपेक्षा रही अंतरस्थ भगवान बाणी निमित्त मो प्रति तांकर की आदेश एवं मते कौन करने को हम ता जानिया और शिखा निमित्त यही एकांतवास मु पाई सर्वप्रथम अनुभूति एवं मोर प्रथम शिक्षा तापरे तापर से शुणा को पाइले सी जपरी जहाँ शुणिले से वर्णना कर कथाटी मुझे बर्तमान प्रकाश करुच्ची मोर मन है जेपरी से पुनर्बार मते कहले जो बंधन भांगार शक्ति तोर निजर नथिला अर्थात से आगु कहले जे तोर सबू आसक्ति छाड़ी केवल देश को मुक्त करिवार आसक्ति लगी रही जो बंधन भांगार शक्ति तोर निजर नथिला से बंधन आंभे तो भांगीचु कारण यह आमर अभिप्राय नुहे अर्थात भितर श्रीकृष्ण एक कहते श्री अरविंद से कथा प्रकाश कर उद्देश्य आमर केबे नथिला जे तू चिरदिन से बंधन रे बंधा हेबी तो सकाशे आंभे आउ एक कार्य स्थिर कर स्पष्ट भाव में प्रभु से कहले बोली कहते श्री अरविंद जे से तो सकाशे आंभे आउ एक कार्य स्थिर करिचु एवं सही कारण रु आंभे तोते एठा को आनीचु जहा तू निजे शिखि पारि नथिलु ताहा आंभे तोते शिखाइबु एवं आम कार्य करवा सकाशे तोते तैयारी करी एक गुरुत्वपूर्ण कथा तोते तैयारी करिवु जहा फल तू आम कार्य करिवु श्रीकृष्णकर कार्य से करिवे बोली तांको जेल भितर को नियाई करा जायतिला एवं सी जेहेतु देशभक्त भितर माती थे से बंधन भांगी थे श्रीकृष्ण तापर कौन है श्रीअनंत भितर को अनेक अनुभूति आसला एवं सी जिते गोटे एकांत बासरे ताकू गोटे रूम रे 6 फुटिया रूम रे ताकू नहीं रखिले मास काल से रहिले से रहा पर प्रभु प्रभु आमर कहते अतएव भगवान ताहा परे यही वस्तु मते देखाई देले जे हिंदू धर्मर सारमर्म मते बुझाई देले अर्थात से कहते श्रीकृष्ण मु जो हिंदू धर्म को विश्वास करू जो हिंदू धर्म को संध्यान दृष्टि देखुली से हिंदू धर्मर सारमर्म मते बुझाई देले से जेलर मान हृदय आड़ को मो आड़ जेलर मान हृदय मो आड़ को खोलीदेले एवं जेल तत्वावधान थिबा इंग्रेज साहेब को कहले ए निर्जन प्रकोष्ठ एरा कहते श्रीकृष्ण ए निर्जन प्रकोष्ठ रे बंद होई कष्ट पाउछंती कोठरी बाहर सकाळ और संध्यारे अंतत अध घंटा लेखाएं याकू बुलिबा को दिया जाऊ से व्यवस्था करागला एही रूपे बुलिबा समय बुझिली जे भगवान शक्ति मो मध्य पुनर्बार प्रवेश करुछि जो जेल खाना अन्य सबू मनुष्य मान पृथक कर रखा थिला ता आड़ को दृष्टि देली देखिली मु उच्च प्राचीर मध्य आबद्ध नाही कहते प्रभु आमर एवं स्वयं वासुदेव मते घेरी रही मो कोठरी सम्मुखस्थ गछ तले मु बुलुथिली किंतु मु जानिथिली जे सेही गछ गछ नुहे वासुदेव को देखुथिली श्रीकृष्ण सेठारे छिड़ा होइछंती एवं मो उपरे तांकर छाया छत्र धरिछंती मो घरर द्वार मुह आड़ को
दृष्टिपात कली सेठारे मध्य वासुदेव को देखिली स्वयं नारायण पहरी होई मते जगिछंती मते जो कंबल बिछना दि जाइथिला ता उपरे सोई अनुभव करछुली जे श्रीकृष्णकर बाहु मते आलिंगन करी रही अछि बंधु और प्रेमिकर बाहु से मते प्रदान करथिले अंतर्दृष्टिर ही प्रथम फल तापरे कहउचंदी को बोली भाबू तांको मध्यरु ए जणे जण कथा वर्णना करी कहउचंदी आउ थरे भगवान मते कहले एई सब लोक मानकु देखो जेउ मानको मध्य को जो जाति को आमे ऊपर को उठेबा को चाहू श्री कृष्ण कहउचंदी अर्जुन बोली प्रभु वर्णना करी कहउचंदी एई सब लोक मानकु देखो जो जाति को आमे ऊपर को उठेबा को चाहू यह ही तार स्वरूप एवं यही कारणरू ताकू उठाइबा को चाहू से जेल भीतर थिबा सब लोक मानकु लक्ष्य करी कृष्ण कहले एही मानकु उठेबा लक्ष्य तेणु तुमको से रूप देखा को एठी आनिछु तापरे मोर अंतर्दृष्टि मते अनुसरण कला ईश्वर मते कहले जेतेबेले तोते बंदी करा होइथिला सेतेबेले तू कातर होई डाकी कहि नथलु कि तमर आश्रय काई वर्तमान मजिस्ट्रेट आड़ को देख सरकार पक्षर बारिस्टर आड़ को देख मु दृष्टिपात कली मजिस्ट्रेट को देखली नहीं देखली वासुदेव को स्वयं नारायण बसचंती विचार आसन रे मु बारिस्टर आड़ को नजर देली किंतु कौन सी बारिस्टर को देखली नहीं बरम सेठारे मोर सखा और प्रेमिक श्रीकृष्ण बसुथार हसुथार देखली से कहले तते वर्तमान कौन भय होउछि मु सर्वभूतंक अंतर रही से मानकर कर्म और वाक्य को अनुसार नियंत्रण करे आमे तते रक्षा करिछु तोर भय नहीं तो विरुद्ध रे जो मोकदमा दायर करा होइछि एहा को आमे हाथ एहा को आंब हाथ रे छाड़ी दे एहा तो सकासे नुहे यह विचार सकाशे आमे तोते को आनी ना अन्य किसी कार्य सकाशे आनीछु एही मोकदमा आम कार्य निमित्त एक उपाय मात्र यह ठारू अधिक किसी नुहे कृष्ण ताको ए भलिया कहले एही थरु आपन गोटे कथा अनुमान करिवे जे श्रीकृष्ण जन व्यक्ति को खोजुथिले जी कि तांकर किसी कार्य तांकर परवर्ती कार्य को संपादन करिवे एवं से श्री अरविंद को सेथिपई प्रथम रु जेल भीतर को नेले एकांत वास देले एकांत वास रे तांकर अनुभूति गुडे देले तापर से कहिले तुमे मोर किसी कार्य करबा पई मु ए जेल भीतर को तुमको आनिथिली एथरु कोन अनुमान होउची श्रीकृष्णकर किसी कार्य श्री अरविंद करेंगे कि कार्य करेंगे 5000-6000 वर्ष तले श्रीकृष्ण जो कार्य सब अर्जुन को देते जो कार्य सब से करते तो बहुत पुराना हो गलानी केतबेले आध्यात्मिकतावाद से सबुठारु चमत्कार ग्रंथ गीता रचना करथिले एवं गीतार शेष वाणी थिला लोक माने जो अतिष्ठ होगी भगवान को प्रार्थना करछि ये दुख जंत्रणा में सहयोग कर पारनु तांकर शेष भाग थिला जे मुख्य सर्वधर्म परित्यजन मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापभ्यो मुक्त्यं साई मासुचे मुख्यटा हेतला श्रीकृष्णकर शेष वार्ता किंतु ये 5000 वर्ष तलर कथा एवं से कथा परे आउ किसी कथा करबा पई से श्री अरविंद को निर्वाचित करते एठी गोटे कथा मु सूचना देवा चाहे अवतार मान जो आसती सृष्टिर चेतना सृष्टि उठी आसी जड़ निश्चेतना मध्य
तेणु धीरे धीरे सृष्टिर चेतना को ऊर्ध्व को नवा होची अवतार मानकर कार्य। रामचंद्र किसी प्रतिष्ठा करथिले, अन्यान्य अवतार किसी प्रतिष्ठा करथिले, श्रीकृष्ण भी प्रतिष्ठा करथिले तांको तत्व को, किंतु से पुराना हे गलानी आउ किसी नुआ तथ्य आड़ को जनसाधारण चेतना को प्रस्फुटित करने पाई से चाहिए। यही हूँ कार्य, ये हूँ प्रभु कृष्णकर कार्य। ये कार्यटा से हाथ में दवाई जेल भीतर नहीं नाना अनुभूति देते। बर्तमान देखु हाँ तापर से बेले से गुरु लेले कही तोर कही स्थूल शरीर धारण करथिबा गुरु वा गाइड आवश्यक पड़े ना, अंतर सब गाइड हम। तेणु सी आउ क्या गुरु करना श्री अरविंद एड़े बड़ साधना भितर से क्या गुरु करना, केवल सब विषय से कृष्ण उपर निर्भर करथिले। से अंतर रे पचारुले, सी तांको कहले जेल रु बाहरला परे तू धीरे धीरे से जिते आउ थे अरेस्ट करने कथा से तत्व को प्रतिष्ठा करें से गोटे कहीं शरीर प्रस्तुत हो ना श्रीकृष्ण चेतना को धारण करने। श्रीकृष्ण को चेतना हूँ अधिमान सर्वोत्कृष्ट अधिमानस चेतना। तेणु से धीरे धीरे प्रस्तुत करेले एवं एभली प्रस्तुत करेले जे श्रीकृष्ण को निज शरीर में धारण करने भाया प्रस्तुति श्री अरविंद है। अनेक वर्ष कठिन तपस्या करने पड़े से जिनसा प्राप्त कले एवं 1926 मसीहा नवेम्बर 24 तारीख दिन से सिद्धि लाभ कले, जमी शरीर भितर कृष्ण आसिक बास कले एवं समस्त कोषाणु कृष्णमय हो गला। ये गोटे कथा कही रखी, भगवत तत्व श्रीकृष्ण को धारण करने कौन शरीर प्रतिष्ठा ही नथिला। आपण मैंने कहे एत मुनि ऋषि योग साधना कर सब कार्य कर सब ऊर्ध्व स्तर रे कृष्ण को धारण करथिले, शरीर पर्यंत कहीं जाइना। प्रथम थर पर शरीर पर्यंत श्री अरविंद शरीर को श्रीकृष्ण निजर बासभूमि निर्वाचित कले एवं सेटा को श्री अरविंद सिद्धि दिवस मन कले। कारण तापर अति मानस आसिया बाट खोलिला। तेणु से अति मानस बाट खोलिबा पाई एवं अति मानस चेतना को पृथ्वी पृष्ठ प्रतिष्ठा करने पाई श्रीकृष्ण श्री अरविंद को प्रस्तुत करथिले। एवं आपण देखो यही सब कथा भितर जब गुरु न था कि से सब कथा कले एणे माँ प्रस्तुत चली माँ कर 4 वर्ष बयस से गोटे चौकी रे बसी ध्यानस्थ हो जाते। तेणु माँ आसी पचार तू कौन पृथ्वी जाकर भार बहन कला भाया एकाठी बस गुम मारिक सी मन मन भावुले हाँ पृथ्वी जाकर भार मो उपर अच्छी। एवं से 4 वर्ष बयस साधना आरंभ करथिले एवं बहु अनुभूति से प्राप्त करथिले, बहु दुख कष्ट सही, बहु जंत्रणा भोग करथिले। एवं श्री अरविंद से ये जंत्रणा विषय गोटे कथा लिखिं जे केते कष्ट से स्वीकार कर मानव समाज को जंत्रणा मुक्ति करने। एवं से श्री अरविंद आउ माँ उभय कहते से जे आध्यात्मिक क्षेत्र में अन्य माने जहाँ सब करी जाइछंती
तार पुनरावृत्ति करने को आम एठारे ना श्री अरविंद कहते अर्थात श्रीकृष्ण ताकू अन्य एक नूतन जिनस शिक्षा करने प्रस्तुत करथिले माँ भी संपर्क में आम पक्षरे आध्यात्मिक पुनरावृत्तिर कौन प्रश्न नहीं कारण से सब आमर पूर्वसूरी माने करि जाइछन्ति आमर आध्यात्मिक अभियान ता पर ठारू आरंभ हो यह एक उन्नत या नूतन सर्जनार प्रश्न एथु आपण अनुमान करंतु संपूर्ण एक नूतन मार्ग आध्यात्मिक मार्ग वर्णना मोर उद्घाटन करवा माँ श्री लक्ष्य से श्री अरविंद बहुत गवेषणा साधना कले सावित्री यार चमत्कार वर्णना सब रही आप देखिए कैंटो 1 रे बुक 1 रे कैंटो 5 पर्यंत साधनार शीर्ष स्तर में पहुंच सारा पर लक्ष्य है समग्र मानव समाज भितर जो दुख जंत्रणा अच्छी ताकू दूरीभूत करने कार्य करने से खोजी चलिए दुख जंत्रणार मूल कौट जो जिनसटा आज पर्यंत आउ केही करना एवं से खोजी चलवा भितर किसी जो पाइले सर्वशेष को गला साधना बहु ऊर्ध को उठा पर निम्न भूमि को अवतरण कले जड़ पर्यंत पुणी जड़ू खोजी खोजी सी गले खोजापी कौटे दुख जंत्रणार मूल कारण रही ये सब सावित्री वर्णा है जड़े ना प्राणभूमि सब गला शेष को प्राणभूमि गोटाए अंधकार राज्यर द्वार मुहरे पहुंची श्री अरविंद कहते नाइट्र द्वार रे पहुंच कहते ओ यही ताले दुख जंत्रणा कारण आपको करने को हम तापर से भितर प्रवेश कले केमती सफा करने को हम एते जंत्रणार वर्णना से करते से कैंसर आप विश्वास करेंगे यहाँ हूँ आपंकर बुक 8 बोधे बुक 2 रो कैंटो 8 से वर्णना सब कर तारी भितर से कहते मृत्यु मो संगे संगे रही केवल गोटे ना को स्मरण करी मुझे पार होती से खोजुले ये दुख जंत्रणार मूल कथाटी कौटी अच्छी तार परवर्ती कैंटो 9 कैंटो 8 रे कैंटो 7 रे कैंटो 8 रे से वर्णना कर गोटे चाबीटी देखिले ये दुख जंत्रणार चाबी से चाबी को हासिल करने शक्ति दरकार पृथ्वी पृष्ठ ए पर्यंत कई हेल्प कौन सी शक्ति नहीं से चाबी को हासिल करने आउ थे आसिक ऊर्ध्वगाम यात्रा आरंभ कले से खोजी बुले शक्ति हासिल करने से कहते बिना शक्ति रे हो पारिनी शेष प्रार्थना करी करी बहु कथा देखी दिव्यजननी को भेटिले दिव्यजननी को आवाहन कले आपण आसतु मो कार्य सहायता करेंगे माँ एक कथा लिखिं मो बेल ना मत कह माँ एक कथा लिखिं सी मत डाकिले सी मत आवाहन कले कार्य सहायता करने मु तलू को ओह्ल आसिक अंधकार राज्य शरीर धारण करी तेणु माँ बही जो धारा सब दिखाई आम कौन जोगर जोग व्यवस्था किसी उपाय नथिला केते कथा साधना करी मुनि ऋषि माने जोग संपर्क केते लेखा केते प्रचुर भाव शेष श्रीकृष्ण भी शेष गीतार सबु प्रकार जोग ज्ञान जोग भक्ति जोग एवं कर्म जोगर वर्णना करके शेष कहले मामेकं शरणं व्रज ये छाड़ी अर्थात मुख्य मुख्य है कौन समस्ते जब पलैबे संसार तैयारी है कहीं समस्ते मुख्य पलैबे मुख्य गोदार देते जी कष्ट खई पारे मुख्य आस साधना कर
से 5,000-6,000 वर्ष धरी मानव चेतना रे उत्कृष्ट मानव चेतना रे प्रतिष्ठित होता मुख्य। तो जेते ध्यान प्रार्थना जेते भजन जेते कीर्तन सब खाली मुख्य को लेकर लिखाई आ किसी नथिला। रथेतु बामन दुष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म मोर दरकार नहीं, मुझे स्वर्ग रे पुड़ाई समस्ते मुख्य माति थे। जदि मुख्य हम ताले मुख्य जदि हम ताले संसार तैयार कहीं। आपण मान गोटे मु उदाहरण देवी। माँ सृष्टि रचना विषय वॉल्यूम 9 रे 225 पृष्ठा कि 26 पृष्ठा हम से वर्णना कर पढ़ी देखिए सृष्टि कहीं है, सृष्टि किए कला, सृष्टि पश्चात कौन रही, सृष्टि एत दुख जंत्रणा कहीं आसी सब माँ से सुंदर भाव पिला बुझेला भाया कर। जदि से कथाटी कराई ताले सब सृष्टि केमती ध्वंस हो समस्ते जदि नहीं पलैबे। तेणु से बेले समस्ते जदि निर्वाण होकर पलैबे, समस्ते जदि मुक्त हो पलैबे, सृष्टि कौन हम से सृष्टिर मुक्तिर द्वार बंद कर दी आउ एक चेतना रे मानव चेतना को ऊपर को उठाई श्रीकृष्ण प्रयास कले श्री अरविंद को लेकर। श्री अरविंद शरीर को प्रस्तुत कले, भितर से प्रविष्ट हेले आउ एक चेतनार उन्नत करने ये सब कार्य करने जो शक्ति को श्री अरविंद अवतरण कराई सी हूँ माँ का शक्ति एवं ये माँ से समस्त शक्ति को धारण करते ये सब करने जिते कष्ट करते संपूर्ण रूपे आध्यात्मिक जगत रे जो जोग मार्ग सब थिला से जोग मार्ग रे कई मन प्राण शरीर तीन को छाड़ी सब जोग कथा कहते ता भितर कई जाई नथिले। श्री अरविंद प्रथम थर पाई से भितर को गले बहु कष्ट सहिले एवं से समय तो नहीं, समय गड़ी गड़ी पड़ोसी। तेणु से कही श्री अरविंद गोटे मेसेज रे कहउछंदी पढ़ी टिके शुणी दूसरी आपको केते कष्टकर कथा। जहा से पाऊनी से कागज खंडक कोठे माँ प्रभु कहते जोर रे गोटे सुंदर बाणी जे केते कष्ट हाँ पाइली पाइली। माँ प्रभु कहते लीडर्स ऑफ द इंटीग्रल जोग रे प्रभु कहते मु माँ और मु आमे दुहे सबु किसी मार्ग चेष्टा करिछु, सबु किसी पद्धति अनुसरण करिछु, पर्वत भली दुष्कर बाधा सबको बहु दिगंत बहु दूरंत ओजनदार बोझ बहन करिछु, जहाकु तुमे अथवा जे कही यही आश्रम रे अथवा आश्रम बाहर समस्त अति कष्टकर अवस्था हेबो। आमे अतिक्रमण करी युद्ध क्षेत्र रे युद्ध करने को
दुर्भेद्य फांद सबको विदीर्ण करने को क्षत विक्षत हो सब को सह्य कर मरुभूमि घंस जंगल तथा पुंजीभूत विरोध उपरे विजय लाभ करिवार व्यवस्था करिछु एवं से प्रचेष्टा करिछु सब को सह्य करिछु एवं प्रभु कहते जोर देकरी जे मु निश्चित जे ये सब कार्य ए पर्यंत पृथ्वी पृष्ठ रे केही करना महाश्री आम जहाँ करिछु ए कथा ए वर्क सच एज आई एम सर्टन none else had to do before us कथा कही किंतु ये सब को करने को ये सब को पुनर्बार करने तुम मैंने साधना करने दरकार नहीं आम से सब पथ निर्देश कर दीचु सनलिट पार्थ तुम्हें से पथरे चैत्य सप्ताह पथरे चलिले तुम्हें सहजरे ताकू प्राप्त कर पाइबे ये कथा कहते ये कथा मोर कहर उद्ध हूँ आमको श्री अरविंद कष्टकर किसी कार्य करने को देना प्रभु सबुबले कहते माँ सबुबले कहते बाणी रे जे तुम माने सबको कौन से कष्ट भितर को जीवाई पड़ोनी आगुरी जिते सब कुशल साधना करुले बहु प्राण आउ शरीर आउ प्राण को बहु जंत्रणा देकर साधना करते एपरिक असुर माने तो हजार हजार वर्ष गोटे गोड़े ठिया साधना करते से साधना थिला प्रभु आउ माँ कहते आमे से पथरे सब कर रास्ता सफा कर वाक्य कहते तुम सब आम कर तुम्हें से सब किसी करने दरकार नहीं तुम्हें जब चैत्य रास्ता सनलिट पथरे चलो तुम्हें से पहुंच पार सनलिट पथटी कौन माँ को जब ग्रहण कर माँ को जब धारणा कर एवं माँ तुमको नहीं सेठारे पहुंचे देवे किंतु माँ प्रति तुम से श्रद्धा से आंतरिकता से कार्य रहा दरकार एवं से कथा कहू जाकरी कहते माँ कहते आम को सब कहला एपरिक उपवास रही कष्ट सहयोग उपवास रही निजर मनोकामना पूर्ण करने जो कार्यधारा सब आगुरी थिला सेटा माँ काटी कहते भगवान केबे दुखित होती नहीं भगवान को उपलब्धि करने को हेले तुमको तुम भितर समस्त दुख भाव को दूर को फिंगी देवा को हेबो एवं सब प्रकार भाव प्रवण और दुर्बलता मध्य त्याग करने को हेबो श्री अरविंद कहते किंतु हे मानवात्मा तुम्हें दुख को खोजी लोड़ी डाकी आण ना कारण दुख काम्य नुहे केवल से ही दिव्य आनंदर अनुसंधान करी चलो दुख कष्ट तो प्रयोजन हिसाब रे तुम पाखक आसीबो किंतु ताहा आसीबो तुम लगी प्रयोजन हिसाब रे सेही दुख वेदना भितर तुम्हें आनंद आविष्कार करी सुखर सार तत्व आविष्कार करि परिबे तेणु आमको जो जेते कष्ट करी कष्ट न कले कृष्ण मिलती जो कहला ताको काटी दी माँ कहते मु संतान माने सदा सर्वदा हैप्पी रहते सिंपली हैप्पी ताकर बाणी सब अच्छी सिंपल हैप्पी से रोज केते दुख भितर को जानी आमे दुख करके भगवान को डाकिले भगवान शुणवे माँ ये कथा कही आमे आनंद रे सुस्थ रे भगवान प्रति डाक भले सी भगवान आम कथा शुणवे आ दुख जंत्रणा कथा से सब भूली जावा को कह
एवं मु एत कथा कहवा पर माँ बहिर किसी कहवा आड़ को जाइनी एगुड़ाक सब बेसी आवश्यक थिला जे कहीं साधना कले श्री अरविंद तक तो गुरु किए ना कहीं सब कहार मोर उद्देश्य थिला तेणु ये कथा मु प्रथम आरंभ कली वर्तमान देखंतु माँ तांकर साधनार कथा जदि आपण ध्यान और प्रार्थना पढ़ुथिबे सब बेले देखिए केते कष्टकर विषय माँ सब परम परम प्रभु ठारू परात्पर ठारू कौन चाहती सी निजक एक दिव्य प्रेमर अग्निकुंड वर्णित करने चाहती जो थे सकल दुख ताप दूरीभूत हो एवं से भाया समय ना से भाया मुझे गोटे दीटा ध्यान प्रार्थना शुणी पारि तथापि मुझे कहूँ आपण मैंने पढ़े जे जून 1 तारीख 1914 मसीहार जो ध्यान प्रार्थना से कहते मत प्रेमर एक प्रतिमूर्ति कर दिए आ गोटे से भाया अच्छी जे अगस्त 27 तारीख 1914 गोटे प्रार्थना करी दिव्य शक्तिशाली अनंत अतल प्रेम रूपे प्रज्वलित हो उठे सत्तार सकल क्रिया मध्य अर्थात सी केवल कही मु प्रेमर मूर्ति हेबी समस्त को मो प्रेम रे बांधिदेवी किंतु केही दुख करी ए जिनस प्राप्त करि परिबे नाही सब खुशी रे आनंद रे रही साधना करी ये हूँ प्रथम कथा श्री अरविंद मां साधनार जोड़ाक आमको अनेक गुड़ी आम सब सेमती कथा सब फॉलो करके साधना करूँ से सब बदलवा कहते आउ गोटे बाणी रे कहते जे पुरातन जो साधना थिला तुम्हें आध्यात्मिक भगवान चिंता को बा साधना करने को साधना को जीवन रु अलग कराई साधना को गोटे रूम भितर ठाकुर रखाई जहाँ सका गाधुआ पधार चित्त तलक हो आसी से भगवान टे ध्यान कर कवाट बंद कर देके आसिक बाहर नाना दुर्नीति कर यही साधना माँ कहते से बाणी रे साधना आ जीवन एका जिनिस तुम्हें साधना करने हम जीवन प्रत्येक क्षेत्र में सी कही तुम खाइबा शोवा साधना भितर को तुम नहीं पार तेणु से सबू भितर देखिए तुम साधना करने शिखा पड़ो तेणु आम बाणीटा मुझे आपन को पाऊनी कोट लिखी रखी ये बाणीटा मुझे आपन को पढ़ के शुणेबी जा हो सही कथाटी हाँ ये देखो माँ एक कहते the whole life is a sadhana. It is a mistake to cut it into bits and say this is sadhana and that is not. Even eating and sleeping should be a part of sadhana. आमको कोट कहुला गुरु ये कहते होल लाइफ सकल जीवन हूँ साधना एवं ये हूँ एक
भ्रम ये हूँ एक भूल जे ताकू खंडित करी केतक जिनस को काटिदी केतक जिनस को साधना कहीकि अन्य केतक जीवन कही कहटा ठीक नुहे इवन योर ईटिंग एंड स्लीपिंग शुड बी ए पार्ट ऑफ योर साधना सबु समय साधना भितर सब जिनस आने को हम एवं ए संपर्क मनोज दासंकर कहार मोर ठीक मन पड़नी गोटे गप मु पढ़ी गप हो पारे कि बहुत जिन सूचना दूसरी ये जड़े व्यक्ति पायखाना बसी एवं राम राम नाम जप कर राम नाम को डाकुच एवं ऊपर से हनुमान जाऊे अयोध्या से शुणिले राम नाम किए डाकुचे तलू आसिले तलू आस देखिए पायखाना बसिक डाकुचे गोटे कषिक गोटे चटकणी बजौले तापर से अयोध्या पहुंचले रामचंद्र देखिले रामचंद्र गाल फुली जाइए आखि लाल पड़ जाइए से देखिए आश्चर्य हेले कहले आपंकर कौन एमती कहीं सरीगला रामचंद्र कहले तुम्हें कौन भावुल तुम चटकणी एत सह्य करवा एत सहज ना आपन तो चटकणी मारी हाँ सी मत डाकुला माने मुझे उपस्थित थी शरीर भितर उपस्थित थी तुम चटकणी मारल क्या सेमती आमर जो धारणा थिला आमर साधना सब भिन्न भिन्न हम माँ श्री अरविंद कथा से बाबाजी महाराज कहते प्रभु कहते सब समय माँ को डाक एकमात्र माँ को डाकिया भितर तुम सब कार्य समाधान हो पार एवं बर्तमान आम देखा ये जो ध्यान प्रार्थना बही रचित होती ए विषय पुंखानुपुंख आलोचना दीर्घ एक मास भरी चली एवं मुझे सब जिनस को रिपीट नक कि नुआ जिनस कहवाई ये सब आप उपस्थित उपस्थापन कली समय तो बहुत अभाव तथापि माँ बही जो साधना विषय दि जाए संपूर्ण नूतन आपण प्रथम अध्याय साधनार लक्ष्य विषय कही साधना केमती कही एवं तृतीय चैप्टर रे माँ को शक्ति विषय वर्णना कर चतुर्थ अर्थ विषय वर्णना कराई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण षष्ठ अध्याय माँ को स्वरूप वर्णना श्री अरविंद माँ को स्वरूप वर्णना करते एवं से भितर माँ जो प्रथम आश्रम को आसिक श्री अरविंद को दर्शन कले मार्च 29 तारीख को दर्शन कले एवं आश्रम रे रहिले ताको केही मानलेनी ताके ग्रहण कलेनी शेष को श्री अरविंद ताको माँ बोली संबोधन कले एवं दिलीप राय बोली जड़े थे सी तो आश्रम छाड़ी पड़ेले ये जन फॉरेन लेडी आपको आम कहीं करूँ किंतु ये कथा जो सब है आश्रम विभ्राट है नाना प्रश्न श्री अरविंद को जो पचरा गला से प्रश्न उत्तर स्वरूप माँ बही सृष्टि दी मतर बही से मानकर प्रश्न उत्तर स्वरूप से माँ बही सबु व्यवस्था शेष को माँ को स्वरूप वर्णना कराई माँ को स्वरूप एवं से स्वरूप रे गोटे अभिव्यक्ति अच्छी से अभिव्यक्ति सबु प्रकार विरोधाभास को दूरीभूत कर अभिव्यक्ति कौन जो अद्वितीया को गोटे वाक्य अच्छे मुझे पढ़ू जो अद्वितीया को माँ बोली आम मैंने पूजा करूँ से हेले विश्वसत्तार अधिष्ठात्री भागवती चित्शक्ति से एक
ଅଥଚ ଏପରି ବହୁରୂପୀ ଯେ ତାଙ୍କର ଗତି ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବା ଅତି କ୍ଷିପ୍ର ମନ ଏବଂ ସର୍ବତ ଭାବେ ମୁକ୍ତ ଚରମ ବ୍ୟାପକ ବୁଦ୍ଧି ପକ୍ଷେ ବି ଅସମ୍ଭବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନରେ ମାଙ୍କୁ ବିଚାର କରନି। ଅନ୍ୟଠି କହିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ମନରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ଭୁଲିଯାଅ, ମାଙ୍କୁ ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭାବନି। ଏବଂ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି। ଶରୀର ଧାରଣ କରିକି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଜନମାନସର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ତମର ଏକମାତ୍ର କାମ ହେଲା ମାଙ୍କୁ ସର୍ବେ ସର୍ବା ବୋଲି ମନେ କର ଏବଂ ମା ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କର। ମା ହିଁ ସବୁ କିଛି ହଉଛି ତୁମର। ଏବଂ ସେଇ କଥାଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମା ବହିର ସୃଷ୍ଟି। ଆପଣମାନେ ତ ବହୁ କଥା ସବୁ ମା ବହି ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଏ କଥାଟା ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିବେ। ଏବଂ ମୋର ସମୟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ ଡେରିରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଭାଇ ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ଭାଇ ଆପଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ, 6:20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ। 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଯେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ମାଙ୍କର ମା ବହିରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ଦିଆଯାଇଛି, ମାଙ୍କ ବହି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ ସବୁ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେଲା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଉ ରିପିଟ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ଆକାରରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଏହାକୁ କରିଥିଲି। ଏବଂ ମୁଁ ମାଙ୍କର କେତେ ଗୁଡେ ବାଣୀ, ମା ନିଜେ କହିଥିବା କେତେ ଗୁଡିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିବି। ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭକ୍ତି କିଭଳି ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ମା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବେ ସର୍ବା, ଏ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ଏଇ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ସେ କଥାଟାକୁ କହୁଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉ କୁହାଯାଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ସାବିତ୍ରୀର 680 ପୃଷ୍ଠାରେ 4ଟି ଲାଇନ୍ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଏବଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ କଥୋପକଥନ ଚାଲିଥିଲା, ସାବିତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁଦେବଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କର କାଳିମାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ଠିଆ ହେଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋକର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତର୍କ ହେଲା, ତାକୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ କଥା ତମେ କହିଥିଲ, ଏ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି earth is the chosen place of mightiest souls. Earth is the heroic spirit's battlefield, the forge where the archmason shapes his works. Thy servitudes on earth are greater, king, than all the glorious liberties of heaven. ଏତେ ଚମତ୍କାର କଥା କୁହାଉଛି, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ କଥାକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଶକ୍ତିଧର ଆତ୍ମା, ବଳବାନ ଆତ୍ମା, ସେମାନେ ବାଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ। କାରଣ ଏର୍ଥ ଇଜ ଦି ହିରୋଇକ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ବ୍ୟାଟଲ ଫିଲ୍ଡ, ବୀର ଅନ୍ତଃପୁରୁଷଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ପୃଥିବୀ। ଏ ଭିତରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକିରି ସ୍ପିରିଟ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ, ବଢିବେ, ସେଥିପାଇଁ এই ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେମାନେ ବାଛିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଏକଥା ବି କହନ୍ତି ଯେ ଫୋର୍ସ ଅର୍ଥ ହଉଛି
ଫୋଜ ଅର୍ଥ ହଉଛି କମାରଶାଳ। କମାରଶାଳରେ କମାର କଣ କରେ? ଲୁହା ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରି ତରଳି କରି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ, ଏକ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ, ଯୋଉଥିରେ ଆତ୍ମା ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ କରି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିତରେ ଦେଇ ନୂଆ ରୂପ ଧାରଣ କରି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଦେଇ ନୂଆ ରୂପ ଆତ୍ମା ମାନେ ଧାରଣ କରି ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତି। ସେ ହଉଛି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯୋଉ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଧରିକି ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେ ଠିକ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରିବା। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆର୍ଥରୁ ପଳେଇଲେ କେମିତି ହବ? ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହୁଛି, ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସିଏ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ କରିକି ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହେଇ ସାକେତ ଗୋଲକ ଯୋଉ ଥିଲେ ଚାହିଁଲେ ରହିପାରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାକ୍ସିତ ହେଇଥିଲା, ସେ ଯାହା ତୁଣ୍ଡରୁ କହୁଥିଲେ ତାହା ଘଟୁଥିଲା। ମୋର ତା ଉପରେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 69 ମସିହାରୁ 83 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଠଚକ୍ର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲି, ବହୁ କଥା ସେତିକି ବେଳେ ସବୁ 3-4ଟା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଫୁଲବାଣୀ ଏସବୁ ଆଡେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ପ୍ରପତିଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ବୁଲୁଥିଲି। ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି, ସେ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ସେ କଥାଟି ଘଟୁଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ପ୍ରମାଣରୁ ଜାଣିଛି ଯେ ସେ ବାକ୍ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯୋଉଠି ହେଲେ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ। ପ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲେ ବସିକିରି, ପ୍ରପତି ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଥର ଥର ହାତରେ ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲେଇଛି। ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆସିକି ଟ୍ରେନରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ ଦେହ ଥରୁଥିଲା, ତାକୁ ଧରିକିରି ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଛି ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କଲେ, ତମେ ଆଉ ଯାଅନି। ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବସିକିରି କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରିପାରିବିନି, ମା କରିବିନି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କାହିଁକି? ସେତିକିବେଳେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ନେବା। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଯିଏ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଚାହିଁଥିଲେ ସାକ୍ଷାତ ଗୋଲକରେ ରହିଥାନ୍ତେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ହେବି, ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି କରିବି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ମାଇଟିଏଷ୍ଟ ସୋଲ କହିବାନି ଆଉ କାହାକୁ କହିବା? ଏବଂ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ, 8-10 ବର୍ଷ ତଳେ ଭୋଳେଶ୍ୱର ଭୂୟାଁ ଯିଏ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସିଏ ମତେ ଧୀରେ ଦୂରକୁ ଡାକିକିରି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ମତେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେନି। ବୋଲେ କଣ କହୁନାହାନ୍ତି? କିଛି ପଚାରିବେନି, ଖାଲି କହିବି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଖାଲି। ନା ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିଛି ପ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ତ ପଚାରିବାକୁ କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ତ କହିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଉଦାହରଣଟା ଦେବା ହଉଛି, ଯୋଉ ଆତ୍ମା ମାନେ ବଳବାନ ଆତ୍ମା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେଇ ବଳବାନ ଆତ୍ମା ମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତି। ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ବସ୍ତୁ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବୁକ୍ 7ରେ କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ 2ଟି ଲିଫ୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଲିଫ୍ଟ ହଉଛି କୃତଜ୍ଞତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଉତ୍ସାହ। ଉତ୍ସାହ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜରିଆରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ। ବୁକ୍ 7ରେ ଏ କଥାଟା ଅଛି ତାଙ୍କର ଇଏରେ, ଯେ ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଉପରେ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ତ ଗଲା ପରେ ବି ସେ କଥା ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଆମ ହୃଦୟକୁ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଭରି ରଖିବା, ଆପେ ଆପେ ମା ମନେ ପଡ଼ିବେ, ଆପେ ଆପେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ହେବ।
ତେଣୁ କୃତଜ୍ଞତା ସବୁବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଆଜି ଭଲ ଏପରିକି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା, ଆଜି ଗୋଟେ ଯେ ଆପଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥାପି ମା ହିଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବୋଲି ମନେ କରିକିରି ଯଦି ମାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବେ, ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭଲରେ, ମାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବେ ତୁମ ଯୋଗୁରୁ ଆସିଲେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞତାର ହୃଦୟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖ। ତୁମେ ଯଦି ସଦା ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦରେ ବାସ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ସେ ତ ଗଲା ପରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଅନ୍ତରର କୃତଜ୍ଞତାକୁ ଦୃଢ଼ କର ଏବଂ ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ ଧାରଣ କର, ସେଇ ଆନନ୍ଦ ସେଥିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। କୃତଜ୍ଞତା ହଉଛି ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତାପରେ ସେ କାଗଜଟା ଦେଲୁ, ଆରଟା ହଉଛି ଉତ୍ସାହ। ଆମେ ଉତ୍ସାହରେ ସେମିତି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଊର୍ଧ୍ୱରୁ ଅନୁମତି ଓ ନିମ୍ନର ଆବାହନ এই ଦୁଇଟିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଉଭୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଘଟାଏ, ତାହା ହିଁ ଭାଗବତ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ସତ୍ତା ଓ ଶକ୍ତି। ମାର ଏଇଟା ପାଇବେ, ଏଇ ଲାଇନଟା ଅଛି ସେଥିରେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ମା ବହିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କହିକିରି। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମା ବହିକୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଅବଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। କୌଣସି ମାନସିକ ପ୍ରୟାସ ବା ତପସ୍ୟା ନୁହେଁ, କେବଳ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ ଆବରଣ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇପାରେ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ମାଙ୍କୁ ଡାକ। ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇକିରି ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ମାଙ୍କୁ ପଚାର। ଏତେ କଥା ସେ ମାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ବା ତପସ୍ୟା ନୁହେଁ, ତପସ୍ୟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରି ତପସ୍ୟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ ଆବରଣ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇପାରେ, ଆଧାରକୁ ଗଢ଼ିପାରେ, ଏହି ତମିଶ୍ରା ମିଥ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ଓ ବେଦନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଉତ୍ତାରି ଆଣିପାରେ ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଓ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଓ ଅମର ଆନନ୍ଦ। ଇଏ ହେଉଛି ମା ବହିର ଶେଷ ବାକ୍ୟ। ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରିବା ପରେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରି କେବଳ ମାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିବା ହଉଛି ମୂଳ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ସୂଚେଇ ଦଉଛି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବେ କହିଥାଉ, ସେଇ ଲୋକଟା ମତେ ଏହା ଗାଳି କରିଦେଲା, ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ବାଧିଲା। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ବାଧେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବାଧେ ନାହିଁ, ଅପମାନ ବାଧେ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ସାବିତ୍ରୀରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଏ ବାକ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। He puts on our joy and sorrow like a robe and drinks experience like a strengthening wine. 77 ପୃଷ୍ଠାରେ ସାବିତ୍ରୀ ଏଇଟା ଅଛି ଯେ ଆମର ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକ ପରିଧେୟ ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ପରିଧେୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛୁ, କାଢିକି ଥୋଇ ଦଉଛୁ, ସେ ଆମ ଦେହକୁ ଲାଗିଛି କି ବେଶୀ? ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ଉଭୟଟି ଆତ୍ମାର ସେଇଭଳି। ସେ ଉଭୟ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, ସେ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡାକୁ ଏକ ମଦିରା ଭାବରେ ପାନ କରନ୍ତି, ବଳଶାଳୀ ମଦିରା ଭାବରେ ପାନ କରନ୍ତି।
ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେଠି ଅଛି 444 ପୃଷ୍ଠାରେ, although the shaping God's tremendous touch is torture unbearable to mortal nerves, the fairy spirit grows in strength within and feels a joy in every titan palm. କହୁଛନ୍ତି shaping gods ଅର୍ଥ ତିଆରି କରୁଥିବା ଦେବତା, ଆମକୁ ଜନ୍ମରେ ତିଆରି କରୁଥିବା ଦେବତା, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ତିଆରି କରୁଥିବା ଗଡ୍ସ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ ଟଚ୍, ଭୟାନକର ଦାରୁଣ ସ୍ପର୍ଶ, ମାନେ ତିଆରି କରୁଥିବା, ଯେମିତି ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷକ ତିଆରି କଲେ ଚଟକଣା ପକାଏ, କୋଉଠି କାନ ମୋଡେ, କୋଉଠି ବସେ ଉଠେ କରେ, ଏମିତି ଆଗରୁ ହଉଥିଲା, ମା ବାପା ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ ଟଚ୍ ଏବଂ ଇଜ୍ ଟର୍ଚର ଅନବିୟରେବୁଲ, ଯିଏ ହଉଛି ଅସହ୍ୟ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଦାନକାରୀ, ସହ୍ୟ କରିପାରିବନି ଯାହାକୁ, ଟୁ ମୋର୍ଟାଲ ନର୍ଭସ୍, ଆମର ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁଶୀଳ ସ୍ନାୟୁମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ତାକୁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ। ଦି ଫେରି ସ୍ପିରିଟ ଗ୍ରୋଜ ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ୱିଦିନ୍, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିମୟ ଅନ୍ତପୁରୁଷ ଅନ୍ତରରେ ବଳିଷ୍ଠ ହେଇକି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଦେଇ, ଏବଂ and feels a joy in every titan palm, ଏବଂ এই ଆସୁରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସିଏ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେନି। ଯୋଉ ଆତ୍ମା କଥା କୁହାଯାଏ, ଡବଲ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଇଛି, ଆମର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ଆତ୍ମା ଯିଏ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ସିଏ ଏଥିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତି, ଦୁଃଖ କରନ୍ତିନି। ମତେ 20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଆହେଇଥିଲା, 20 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକା ସମୟ ମୁଁ ନେଇଗଲି। ଆଉ କିଛି କହୁନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ କୃତଜ୍ଞତାର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା, ସମସ୍ତ ବାଣୀକୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଭାଇଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରିବା। ଭାଇ ଏଇଭଳି ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଅଗ୍ରଗଣୀ ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମା ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ରଖିଲେ, ଏହାକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ କିଭଳି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଏଇ ଭବିଷ୍ୟତର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇକରି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଗରେ ରଖିକିରି ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ କରୁଣାମୟଙ୍କର କରୁଣାକୁ ଆବାହନ କରିବା, ଆସ୍ପୃହା କରିବା, ଆମକୁ ସେ ସେମିତି ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ତାଙ୍କରି ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଗଢି ତୋଳନ୍ତୁ। ଭାଇ ତ ଅନେକ କଥା କହିଲେ, ତେଣୁ ଏଇ ମା ବହିଟି ପୁସ୍ତକଟି ହଉଛି ଆମର ଏକ ମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଏକ ଯୋଗର ସାରମର୍ମ, ସବୁ କିଛି ତା ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ବହିକୁ କେବଳ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାନି, ତାକୁ ଅନ୍ତରରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ସେଇ ମାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରେୟାର କରିବା। ମା ହିଁ ସାଧକ, ମା ହିଁ ସାଧନା, ସବୁ କିଛି ହିଁ ସେ ହିଁ ପଥ, ସେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି କରୁଣା ତ ଅନବରତ କୃପାବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ହିଁ ସାଧକ, ସେ ହିଁ ସାଧନା। ସବୁବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେୟାର କରିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ରହିବା, ସବୁବେଳେ ମଦର ବି ୱିଥ୍ ମି, ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଥିରେ ସେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସେଇଭଳି ଆସ୍ପୃହାର ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ନିଜକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରିବା।
ଆସ୍ପୃହାର ଅଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି କୃପା ବାରିକୁ ଆମେ ଆଧାରରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ କୃତଜ୍ଞତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଜୀବନରେ ପାଠ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ମାଙ୍କୁ ସେହି କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲିର ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କାଲିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ସେଇ 6ଟାରୁ 6:30। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସ୍ପୃହା କରିବା ଏବଂ ଏକତ୍ରିତ ହେବା। କାଲିର ଟପିକ ରହିଛି ଦି ମଦର୍ସ ବୁକ୍ and practice of integral yoga। ସ୍ପିକର ରହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଆଲୋକ ପାଣ୍ଡେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ରତାର ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଏହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଏବଂ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କେବଳ ତ ସହଯୋଗ କରିବା। ମା ହିଁ ନିଜେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ସେ ହିଁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା। ମା, victory to the divine mother, victory to the divine mother, victory to the divine mother। মা